morning friends, myself Madhusmita Panda as a botany lecturer. I am going to give today's video on behalf of Infinity classes. So last class we have discussed about prokaryotic cell. Today we will discuss about eukaryotic cell. Okay. Eukaryotic. As we know that eukaryotic cell means ମୁଁ आगु already कहि सारछि जेमति U means advanced. तो जो सेल मानक पाखरे those cells which contain advanced type of nucleus means a nucleus which contain a nucleolus and a nuclear membrane along with all the cell organelles are known as eukaryotic cells. So generally eukaryotic cells include protist, fungi, plantae, animalia. Okay, all these organisms means protist, fungi, plantae, animalia are known as eukaryotic. So we'll proceed about the diagram of a common eukaryotic cell. So this is the rough diagram of a eukaryotic cell. Okay. So here is the eukaryotic cell. Look here. So eukaryotic cell दी भाग रे अच्छी mainly ये हो चोटे plant cell रो diagram and another one is animal cell. तो first plant cell देखने में तो plant cell रे कौन अच्छी the outermost covering is known as cell wall. We already know that. Next inner one is known as cell membrane. Our central part देखो the central part of the plant cell is occupied with a big vacuole.
Okay, this one is the big vacuole, so that the nucleus is pushed towards the periphery. Periphery means side को nucleus टा कोन है push है जेहेतु central part रे बहुत गोटे बड़ा vacuole अच्छी, तो nucleus is pushed towards the periphery. Okay, inside the nucleus it contain nucleolus, जोड़ा को हमें कौन कहूँ nucleosity, and it is the chromatin material inside the nucleus. Okay, and it is the nuclear membrane. Okay, that's why it is known as eukaryotic cell, because it contain nucleus along with nucleolus and the nuclear membrane, and these are the endoplasmic reticulum. We know that endoplasmic reticulum is divided into two types. One is smooth endoplasmic reticulum, this one. Another one is rough endoplasmic reticulum. Okay, smooth कौन पे कहा जाए, because एठी राइबोसोम नहीं, without राइबोसोम. एठी कौन अच्छी राइबोसोम अच्छी, डॉट गुड़ा देखा जाउची ना, तो endoplasmic reticulum with ribosome is known as rough endoplasmic reticulum, whereas endoplasmic reticulum without ribosome is known as smooth endoplasmic reticulum. Okay, next this one is mitochondria and this one is plastid, जहाँ को हमें लौबको कहूँ. Next peroxisome, next lysosome, this one is Golgi complex, and entire fluid को हमें कौन कहूँ, cytoplasm. Okay, so this is the rough diagram of a eukaryotic cell. तो यूकैरियोटिक सेल रे एमती सब गोटे गोटे ऑर्गेनेल विषय रे हमें पढ़ी पढ़ी जिबा. तो फर्स्ट विषय रे हमें का विषय रे पढ़िबा, सेल मेम्ब्रेन विषय रे. तो एठी देखिले हमें ए पार्ट टाको कोन को होची, सेल मेम्ब्रेन. तो ए सेल मेम्ब्रेन टाको एनलार्ज्ड व्यू करके देखिबा. Cell membrane. So what is this? It is the cytoplasmic membrane. हमें आगुरु भी जानी चाहिए, the outermost covering of a cell is known as cell membrane in animal cell, whereas the outermost covering of a cell is known as cell wall in plant cell. तो plant cell रो inner को कौन था, cell membrane था, but animal cell रो outermost रे cell membrane था. So this cell membrane, ये जो cell membrane अच्छी, this cell membrane is also known as plasma membrane. आपको आउ कौन भी हमें कही परिबा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और बायो मेम्ब्रेन, all are having the same meaning. The cell membrane is also known as plasma membrane, plasma lemma, biomembrane. Okay, next composition देखिबा, cell membrane केमते तैयारी हेची. तो generally the cell membrane is made up of two components. What are the two components? Mainly it is made up of two components. One is lipid, another one is protein. So most of the part of cell membrane is made up of lipid and protein. So cell membrane ro structure देखिबा. So the structure of a cell membrane is broadly divided by three ways. जेमते कि तीन प्रकार मॉडल रे को डिवाइड करा है, तीन प्रकार मॉडल जान पड़ियो. फर्स्ट वन होची सैंडविच मॉडल, second one unit membrane model, third one fluid mosaic model. Okay, so cell membrane रो structure जणिया पे हमें कौन कौन मॉडल यूज करा होची, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तो पूर्व आ गोटे जिनस जो हमें पढ़िले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द वर्ड सेल मेम्ब्रेन, the word cell membrane is given by the scientist Nageli and Kramer. Okay, it's also important. The word cell membrane was given by the scientist Nageli and Kramer. Okay, next. तो first देखिबा sandwich model.
तो समस्त सैंडविच कहले कौन जानथिबो ना रो जाना पड़छि सैंडविच तो सैंडविच कहले कौन दिस वन इज सैंडविच एटा को सैंडविच को हमें माने ऊपर गोटे ब्रेड थाए तले गोटे ब्रेड थाए और मझे किछि स्टफिंग्स थाए एटा होछि स्टफिंग पार्ट एटा गोटे ब्रेड लाइक दैट ओनली सेल मेम्ब्रेन तैयारी होई थाए जेमिति कि ए जो सैंडविच मॉडल जो दुटा ब्रेड अछि सेटा एक्चुअली रे कोथिरे तैयारी वे प्रोटीन रे ओके अगो कंपैरिजन कराई छै एंड इनर स्टफिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ phospholipid okay so in sandwich model the cell membrane is made up of proteins and phospholipid whereas it contain two protein layer एठी गोटे प्रोटीन लेयर अछि एठी गोटे प्रोटीन लेयर अछि आ इनर साइड रे कोन अछि गोटे phospholipid layer okay according to this sandwich model it contain two protein layer so this one is mono layer of protein mono layers means single layer eta gote single layer achi ethi a gote single layer achi means two mono layer of protein okay next this one is phospholipid one bilayer of lipid तो एटा कोडी कोन लिपिड लेयर बट लेयर कितना अछि एटा गोटे लेयर एटा गोटे लेयर तो लिपिड कोन अछि बाई लेयर रे अछि प्रोटीन कोन अछि मोनो लेयर रे अछि बट प्रोटीन दीटा अछि मोनो लेयर रो लिपिड बाई लेयर रो गोटे अछि ओके तो डायग्राम रे बुझ पालो एटा को कोन कहला सैंडविच कंटेन टू मोनो लेयर ऑफ प्रोटीन्स along with one bilayer of lipid तो ये देखि पारुचे सब ए गोटे डायग्राम गुडा हम ड्रा करछि तो आपको एनलार्ज व्यू करके देखिबा तो ए लिपिड रे कोन थाए एक्चुअली लिपिड काहे रे तैयारी हेछि तो ये गोटे कौन लिपिड लेयर देखो तो ये जाना पड़ी आर दीटा पार्ट अच्छी तो दीटा पार्ट भितर ये फर्स्ट पार्ट होची हेड एंड दिस पार्ट इज नोन एज टेल ओके दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल एंड दिस हेड इज नोन एज हाइड्रोफिलिक हेड एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक ओके हाइड्रो माने कौन वाटर फिलिक माने कौन लविंग तो हेड गुड़ाक कौन वाटर लविंग सब्सटेंसेस रे तैयारी वाटर लविंग सब्सटेंसेस एंड दिस वन इज हाइड्रोफोबिक फोबिक माने फियर बा डर तो एटा कौन वाटर हेटिंग सब्सटेंसेस और आमे आउ कौन कहू हेड इज द पोलर सब्सटेंस एंड द टेल इज द नॉन पोलर ओके तो लिपिड लेयर रे कौन अच्छी दीटा पार्ट अच्छी गोटे अच्छी हेड आ गोटे होची टेल हेड टा कोथरे तैयारी पोलर सब्सटेंस रे तैयारी टेल टा कोथरे तैयारी नॉन पोलर सब्सटेंस रे तैयारी ओके ताको आउ कौन कह जाए हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल क्लियर हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग ओके पोलर सब्सटेंसेस मीन्स कौन दोज व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर तो first one is finished sandwich model but it was not accepted sandwich model due to different reasons. Next one is unit membrane model.
unit membrane model. Unit membrane model was given by the scientist Robertson. So according to this scientist, not only the cytoplasmic membrane but also all the internal membranes contain trilamellar membrane. तो ये साइंटिस्ट को हिसाब से कही जे रॉबर्टसन ओनली जे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ही ट्राइलेमेलर ता नुहे बल्कि ऑल द इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल आर आल्सो ट्राइलेमेलर. तो ट्राइलेमेलर मीन्स कौन इथि कहा जायछि जस्ट किछि मॉडलिंग रे चेंज अछि बाकी सेम थिंग. तो एथरे भी से सेम लेयर अछि. एटा होछि गोटे प्रोटीन लेयर, एटा होछि गोटे प्रोटीन लेयर और मझीटा होछि लिपिड लेयर. ओके आर केते आर्मस्ट्रांग थाए जनरली इट इज 15 आर्मस्ट्रांग एंड दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली 45 आर्मस्ट्रांग. तो एटा को कोन कहै छै ट्राइलेमेलर. दिस वन 1 2 3. तो ये मॉडल को कौन कहा जाए ट्राइलेमेलर मॉडल व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज फॉस्फोलिपिड. ओके according to Robertson, not only the cytoplasmic membrane is trilamellar but also all the internal membranes of the cell is also trilamellar. Okay, next last one. Last and the important and most accepted model is known as fluid mosaic model. Question aase eta 2 mark question aase short notes aase. So the fluid mosaic model was given by the scientists Singer and Nicholson in year bhi man rakhiya padibo 1972. Okay, short note MCQ. The fluid mosaic model was given by the scientists Singer and Nicholson in the year 1972 and this was the most accepted model according to scientists on the basis of their structure and function. Okay, तो Singer and Nicholson को हिसाब रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे तैयारी सेम लिपिड एंड प्रोटीन रे ही तैयारी. That's why it is known as lipoproteinous in nature, means it is made up of lipid as well as protein. But not only lipid and protein, जे only lipid और protein अच्छी ता नुहे आपको छाड़ी के भी बहुत सारे जिनिस थाए जेमिति कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन and cholesterol. Okay, so the fluid mosaic model it is a bilayer model and it is also contain lipid, protein along with glycolipid, glycoprotein and cholesterol. Okay, तो Singer and Nicholson को हिसाब रे मॉडल टी केमति थिला देखिबा. ओके देखो तो ये कौन अच्छी यहाँ हूँ कौन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्लियर, यहाँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आगुरी जानिछे. यहाँ हूँ कौन पोलार हेड एंड दिस वन इज द नॉन पोलार टेल. देखो टेल गुड़ाक कौन कर ईच अदर को फेस कर व्हेयरएज पोलार हेड गुड़ाक बहुत अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज these hydrophobic tails are contacted with each other whereas the hydrophilic heads are away from each other. Okay, because जदि मन कर यहाँ गोटे सेल आउटसाइड हुए और यहाँ गोटे सेल इनसाइड हुए तो सेल इनसाइड रे भी कौन थाए एक्वस सॉल्यूशन थाए माने वाटर थाए. सेल आउटसाइड रे भी कौन थाए एक्वस सॉल्यूशन थाए. तो जेहेतु मु कहली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल गुड़ाक कौन वाटर हेटिंग बा हाइड्रोफोबिक इन नेचर से कौन थांती अवे फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन थांती. क्लियर, जमती कि ये कंटाक्ट रे किए आसीबो पोलर सब्सटेंस ही आसीबे नॉन पोलर सब्सटेंस भीतर रहिबे. सेम
आउटसाइड रे भी कौन अच्छी एक्वस सॉल्यूशन अच्छी तो कांटेक्ट रे पोलर सब्सटेंस आसीबे नॉन पोलर सब्सटेंस भीतर रहबे ओके तो नेक्स्ट so in this model two types of proteins are there the proteins are divided basically into two types one is extrinsic or peripheral protein second one is intrinsic or integral protein okay so the proteins present in fluid mosaic model is divided into two types one is extrinsic protein another one is intrinsic protein तो extrinsic protein कहा को कहा जाए those proteins are loosely attached and present on the surface ओके सो जमते एग्जांपल एटा तो एटा कोन गोटे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन टा जमते कि ये कोन अछि कहलो लूजली अटैच हेछि एमान को सते कोन अछि और बॉन्डिंग टा बहुत लूज अछि और कोठी अछि सरफेस ऊपर अछि सो दैट वी कैन रिमूव द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वेरी इजीली और क्विकली चाहिए आमे कोन करि पारे जेहेतु बॉन्डिंग टा वीक थाए आमे आपको इजीली अलग करि पारिया बट इंट्रिंसिक प्रोटीन कहिले दोस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट integrally means भितरे थाए and tightly attached देखो जमते कि एटा तो एटा होची गोटे कोन इंटीग्रल प्रोटीन एगुडा सब कोन एटा होची गोटे इंटीग्रल प्रोटीन कोडी अछि लिपिड लेयर मानक भितरे अछि एंड एमानकर बॉन्डिंग कोन थाए एमानक सहित बहुत स्ट्रांग थाए तो एमान को इजीली बाहर करी हबनी तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आउटर सरफेस रे थांती इजीली रिमूवेबल बट इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड मानक सहित बॉन्ड अटैच करके थांती तो इजीली रिमूवेबल नुहंती क्लियर एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल इंट्रिंसिक और इंटीग्रल ओके सो जो फ्लूइड अच्छी द फ्लूइड प्रेजेंट इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिव्स माने रोल कोथरे थाए इट गिव्स ए डायनामिक नेचर कौन प्रोवाइड करे ये मेम्ब्रेन को डायनामिक नेचर कोथरे डायनामिक नेचर प्रोवाइड करे इट गिव्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मीन्स कौन ये मेम्ब्रेन को कौन दिए फ्लूइडिटी मीन्स इट इज नॉट मीन्स कंपैक्ट नुह मीन्स इट इज मूवेबल बा मोबाइल हम जाको कहचे मोबाइल सो ऑल द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मोबाइल इन नेचर मोबाइल मीन्स से कौन कर पारिबे मूव हे पारिबे एटा गोटे लिफलेट देखो एटा गोटे लिफलेट तो सेमते एटा गोटे लिफलेट सो द प्रोटीन्स कैन बी मोबाइल इन नेचर विद इन द लिफलेट भितर से निज को निजे मूव कर पारंती और फ्रॉम वन लिफलेट टू अनदर लिफलेट गोटे लिफलेट रु आ गोटे लिफलेट को भी से मूव कर पारे तो ए नेचर को कौन कहा जाए फ्लूइडिटी ओके सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स फ्लूइडिटी और व्हिच इज मोबाइल इन नेचर means it gives the lipid and proteins a mobile nature that means se mane nije ko nije kon kari paribe nijero place ko change kari paribe not static fix nuho आ गोटे word भी अछि this fluid is known as the fluid present in plasma membrane fluid present in plasma membrane is quasi fluid in nature तो quasi fluid कहले कौन quasi means होची semi liquid और सेमी सॉलिड माने कौन कहा जाए जो थे कि लिक्विड थाए प्लस सॉलिड मीडियम भी थाए सेटा को कौन कहा जाए क्वासी फ्लूइड मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली लिक्विड एंड इट इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड क्लियर सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर एंड इट गिव्स डायनामिक नेचर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन
This membrane helps in selective permeability. तो वर्ड कौन आसला एडे सिलेक्टिव. सिलेक्टिव परमेबिलिटी मीन्स कौन सिलेक्टिव मीन्स एटी कौन मगा जाए परमिशन मगा जाए. तो जेहेतु एटा सेल रो मेम्ब्रेन आ देकी ही आउटसाइड रो किछि जिंस मीन्स प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स किछि भी भितर को आसी पारे और भितर रो इनसाइड रो किछि जिंस कोन हे पारे आउटसाइड को जाय पारे. तो ये जो मेम्ब्रेन अछि ये कौन करे सिलेक्टिवली चूज करे. जदि गोटे जिनस बा गोटे प्रोडक्ट आम सेल पाई अननेसेसरी व्हिच इज अननेसेसरी टू अवर सेल देन द सेल मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ दैट प्रोडक्ट टू गेट इनसाइड द सेल. Okay, that's why it is known as selectively permeable, which selects all its products which goes inside or outside the cell. Clear? तो ये देखो जो बहुत बड़ा अच्छी है तो sometimes कौन हुए some proteins are there which are more bigger in nature, means they starts from this leaflet and ends in another leaflet. ए end रो start है कि आ गोटे end रे सर्च होंते. तो एमाने कौन करते these products generally helps in transport of proteins, water and other substances. Okay, so the proteins which are present from both the leaflet by enter membrane रे जे थाए से प्रोटीन गुडा को कोथरे हेल्प करंती ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स वाटर एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स. बिकॉज ए जो पोर्शन अच्छी ए पोर्शन रे कौन हुए ओनली स्मॉल पार्टिकल्स ही मूव करि परिबे. बट लार्जर पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन्स हाई मोलिकुलर वेट जो मैंने अच्छा प्रोटीन्स के इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने मूव करें ना. सो दे रिक्वायर ए पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर. तो ये जगह कौन करे ट्रांसपोर्टर हेल्प करे. क्लियर? नेक्स्ट आउ गोटे जिनस अच्छी जमती कि फंक्शन फास्ट फंक्शन आम जानले द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर. ओके, ये मन रखा पड़ो एंड इट इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर. अनदर वन इज it helps in active transport as well as passive transport. तो गोटे पॉइंट मन रखी दीजिए जाक जिनस मन रही. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कौन द ट्रांसपोर्ट व्हिच इज डन बाय द यूज ऑफ एनर्जी. तो जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी को यूज करके करा जाए ताको कौन कहा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मीन्स जोटे कौन हुए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट which occurs against the concentration gradient. Okay, but passive transport is which occurs along the concentration gradient. जोटे कि कौन दरकार पड़ेनी एनर्जी दरकार पड़ेनी along the concentration gradient means high concentration to low concentration without the involving of energy. Clear? The membrane helps in active transport, passive transport. Active transport means which occurs by involving energy because it is against जमते कि हमें पहाड़ चढ़ीबा means down रो हमको up जीवा को पड़िबो ताहले हमको कौन यूज करिया पड़िबो एनर्जी यूज करिया को पड़िबो. That is active transport which is known as uphill journey. आको uphill journey भी कहा जाए because सेठी एनर्जी दरकार पड़े uphill journey. But passive transport is downhill journey. जो आम पहाड़ तल को आसुचे किसी एनर्जी दरकार पड़े कि ना आराम से हम तल को आसपर बिकॉज इट इज along the concentration gradient. Okay, हाई कंसेंट्रेशन रू लो कंसेंट्रेशन को जाए बट सेठी लो कंसेंट्रेशन रू हाई कंसेंट्रेशन को जाए. सो एगुड़ा सब कौन थिला फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन रे कौन थिला परमेबिलिटी मीन्स इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर. सिलेक्शन करके ही ये प्रोटीन्स किंबा किसी भी इक्विपमेंट्स को प्रोडक्ट्स गुड़ा को इनसाइड आउट और आउटसाइड इन अलाउ करे. नेक्स्ट हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट हेल्प्स इन पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो आई विश तुम को ये जिनस बुझा पड़ो. जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी तो पर्सनाली कांटेक्ट करो और जहाँ भी डाउट अच्छी से कमेंट बॉक्स में लिखिकी जन पार. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.